Good morning class and welcome back in the Mohan sir classes. I will teach you today electromagnetic induction. This will be the new chapter. हम पहले ही खत्म कर चुके थे मैग्नेटिज्म. अब हम न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंटर किए हैं. तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? Total number of magnetic field lines linked with the surface perpendicularly is called magnetic flux. It is denoted by phi. SI unit, Weber or Tesla meter square, CGS unit, Maxwell or Gauss centimeter square. 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Gauss centimeter square. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. So it is added algebraically, इसलिए इसको algebraically ऐड किया जाता है. फोर्थ मानते कोई फोर्थ है, मानते कोई सरफेस है. न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू product of area vector and magnetic field which is parallel to the area vector. मानते कोई सरफेस है, उसका एरिया वेक्टर ds है. A magnetic field makes theta angle with the area vector. So B has two components, B cos theta and other one is B sin theta. Then according to this definition, numerically it is equal to product of area vector and magnetic field which is parallel to the area vector. Then d phi is equal to होगा B cos theta ds or B dot ds. Hence dot product of magnetic field and area vector is called magnetic flux. Okay. Magnetic total number of magnetic field lines linked with the surface perpendicularly is called magnetic flux. It is denoted by phi. SI unit Weber or Tesla meter square, while CGS unit is Maxwell or Gauss centimeter square. 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Gauss centimeter square. It is a scalar quantity, so it is added algebraically. Numerically, it is equal to product of magnetic field and area vector and magnetic field which is parallel to the area vector. Numerically, it is equal to product of area vector and magnetic field which is parallel to the area vector. जो area vector का parallel हो, मतलब B को तोड़ना, ds का कंपोनेंट नहीं तोड़ना है, इसलिए B को कंपोनेंट तोड़े. हेंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ, तो या B cos थीटा ds यानी B डॉट ds कह सकते हैं. हेंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. चूंकि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए.
तो डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा। इफ थीटा इज 0 then d phi is equal to क्या होगा, b ds cos 0, cos 0 1 होता है, therefore b ds, this is called positive magnetic flux. If theta बराबर 90 डिग्री, d phi is equal to b ds cos 90, this is 0, this is called zero magnetic flux. If theta is 180, d phi is equal to b ds cos 180, that is minus b ds. So this is called negative magnetic flux. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम दे सकते हैं कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मानते हैं कि एक सरफेस एक्स वाई जेड है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। एक सरफेस है, फिगर 1 जिसका एरिया वेक्टर इस तरह से है, ये फिगर 1 है। फिगर 2 में क्या है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और फिगर 3 में इस तरह का है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड है bx एंड by। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द ईच फिगर। ये फिगर 2 है एंड दिस इज फिगर 3। अब चलते हैं फिगर 1 में। तो फिगर 1 का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। सो magnetic field is only along x axis and y axis, so its flux is 0 for both magnetic field. तो for figure 1 के लिए d phi is equal to b da by da cos 90 plus bx da cos 90, that is 0 plus 0 is equal to 0. 0 फिगर 1 से मैग्नेटिक फ्लक्स 0 उससे लिंक्ड है। देखेंगे उसके बाद इसमें चलते हैं। ये इस तरह से है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक्स वाई जेड प्लेन में है। तो ये बी वाई जो है उसका परपेंडिकुलर है। देखिए इससे 90 डिग्री बन रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाइए तो देखिए 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन दिस एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू बी एक्स। सो फिगर 2 के लिए अगर हम सोचते हैं तो डी फाई इज इक्वल टू होगा बी वाई डी ए कॉस 90 प्लस बी एक्स डी ए कॉस 0, that is 0 cos 90 0, this is bx da। तो इसका होगा bx da हो जाएगा। फिगर 3 के लिए चलते हैं अगर हम, तो इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री, लेकिन y एक्सिस के साथ ही पैरेलल बना रहा है। तो फिगर 3 में d phi इज इक्वल टू हो जाएगा by da cos 0 और प्लस bx da cos 90, that is by da प्लस 0, दैट इज by da। इस तरह से अलग अलग सरफेस एरिया के लिए, अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इससे मैग्नेटिक फ्लक्स और भी हम कुछ दूसरे तरह से निकाल सकते हैं कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये एप्लीकेशन 1 समझ लीजिए। एप्लीकेशन 1 इसको कह सकते हैं कि कैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरे में आते हैं। Application 2. Find the magnetic flux linked with a spiral coil having inner radius A while outer radius B। तो एक स्पाइरल कॉइल है जिसका इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स dn है
इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो सबसे जब भी करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो एक छोटा सा सेक्शन लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एक छोटा सेक्शन लेते हैं जिसका थिकनेस dr है, एट ए डिस्टेंस ऑफ r, at a distance of r we consider a small section dr at a distance of r। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना लिंक्ड होगा इससे, तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा dn म्यू नॉट I बाई 2r। करंट I फ्लो कर रहा है, dn टर्न है, तो b माइनस a में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, n है, तो 1 में कितना हो जाएगा n बाई सिंस देयरफॉर n बाई b माइनस a, तो dr में कितना हो जाएगा इनटू dr, यानी dn इज इक्वल टू दैट इज dn इज इक्वल टू लिख सकते हैं n dr बाई b माइनस a। तो dn का वैल्यू पुट कर सकते हैं, db इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dn n dr बाई b माइनस a म्यू नॉट I बाई 2r। dB हुआ, सॉरी dB ऐसा निकाल लिया। अब फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू dB इंटू da, dB इंटू a ले लेते हैं, तो dB d फाई इज इक्वल टू, तो n dr म्यू नॉट I बाई b माइनस a इंटू 2r इंटू a, dB इंटू a है, तो a बराबर कितना हो जाएगा उसका पाई r स्क्वायर हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, d फाई इंटीग्रेट करेंगे n म्यू नॉट I बाई 2 इंटू b माइनस a इंटू पाई r dr, लिमिट लेंगे a से लेके b तक, तो कितना हो जाएगा n म्यू नॉट I पाई बाई 2 इंटू b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर बाई 2 होगा, एक बार b स्क्वायर दे देंगे, एक बार a स्क्वायर दे देंगे, तो कितना हो जाएगा n म्यू नॉट I पाई बाई b प्लस a इंटू b माइनस a बाई 4 b माइनस a, तो b माइनस a से b माइनस a कट जाएगा, कितना बचेगा n म्यू नॉट I पाई b प्लस a बाई 4। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, स्पाइरल कॉइल। इस तरह से हम निकालेंगे, यानी फ्लक्स आपको b इंटू da करके निकालना है। और भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर सोलेनॉइड में भी हो सकता है कि कैसे बनेगा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, उस तरह के ही बनाते हैं। एक और मैग्नेटिक फ्लक्स का क्वेश्चन देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एप्लीकेशन नंबर 3। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स find the magnetic flux linked with rectangular toroid having length L, breadth B, its inner radius R, inner radius A, while outer radius A प्लस B। इस तरह का टोरॉइड है, ये है B और ये है L, इस तरह से बना हुआ है।
इस तरह से बना हुआ है, पूरा जुड़ा हुआ है, हेलिकल सोलेनॉइड है, n नंबर ऑफ टर्न्स उसमें दिया हुआ है। तो एक छोटा सेक्शन लेंगे, इसका इनर रेडियस इसका a है और बाहर रेडियस a प्लस b है। एक छोटा सेक्शन लेते हैं dr एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टोरॉइड। तो फ्लक्स बराबर क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू डी आर, बी इंटू एल इंटू डी आर। और किसी भी टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, n म्यू नॉट I बाई 2 पाई, पूरा का रेडियस 2 पाई r हो जाएगा। I करंट अगर उसमें इस तरह से लपेटा हुआ वायर, ऐसे I करंट फ्लो हो रहा है पूरा में, इस तरह से लपेटा हुआ है चारों तरफ तार, तो I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो रेडियस हम r पर ले रहे हैं तो r 2 पाई r लेना होगा हमको। यार b इज इक्वल इतना होगा डी फाई इज इक्वल टू, तो डी फाई इज इक्वल टू बी का वैल्यू पुट करते हैं n म्यू नॉट I बाई 2 पाई r इंटू एल इंटू डी आर। ये फ्लक्स हो गया, b इंटू डी ए करके cos 90 होता है, cos 0 होता है, इंटीग्रेट करते हैं तो डी फाई बराबर फाई हो गया। इसका लिमिट कितना से कितना है, a से लेके a प्लस बी तक जाएगा, a से लेके a प्लस बी तक। तो n कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, बाई 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो 1 बाई r डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln मॉड r, लिमिट लेंगे a प्लस बी तक, यानी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा n म्यू नॉट I L बाई 2 पाई ln a प्लस बी माइनस ln a, और लिख सकते हैं n म्यू नॉट I L बाई 2 पाई ln a प्लस b बाई a mod। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द टोरॉइड। टोरॉइड के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा ये इतना होगा। और भी मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड और भी एप्लीकेशन हो सकता है, आप उसको हमको कमेंट कीजिएगा या हमको ईमेल कीजिए mohansarclasses@gmail.com पर कि और क्वेश्चन हमको चाहिए तो हम क्वेश्चन देंगे। बात जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए हमको, या लिखिए कि क्या हमको चाहिए तो हम और उस पर इम्प्रूव करेंगे। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी भी शेप के लिए, क्योंकि अगर हम जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने नहीं आएगा तब तक हम किसी चीज का उसको चेंज नहीं कराएंगे तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। इसी को बताया सबसे पहले फैराडे। तो फैराडे फ्लक्स रूल में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फैराडे फ्लक्स रूल, फैराडे फ्लक्स रूल का एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, उस पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें पहले एक्सपेरिमेंट किया, बहुत तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। उसमें 2-3 एक्सपेरिमेंट हम बताते हैं। जैसे मानते हैं कि कोई कॉइल लिया, गैल्वेनोमीटर है, और नॉर्थ पोल को उसके नजदीक लाया ग्रेजुअली और रैपिडली। व्हेनेवर, पहला पॉइंट था कि व्हेनेवर north pole of the magnet is brought towards the coil along its axis gradually or rapidly। ठीक है, लिटरल मीनिंग फ्लक्स का क्या मतलब होता है, वास्तव में यहाँ पर एक जरूरत है लिटरल मीनिंग समझाने के लिए। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, कि कितना उससे फ्लो कर रहा है कोई भी चीज। जैसे एक पाइप है, मानते हैं ये पाइप है, ऐसे पानी वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसे गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड वाटर फ्लक्स। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिवन एरिया से कितना लिंक्ड हुआ तो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड अगर लिंक्ड हुआ तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी उतना फ्लो कर रहा है लाइन्स ऑफ फोर्स। इसको एकदम साधारण एग्जांपल से समझ सकते हैं। घर में सभी के पास झाड़ू, जिसको ब्रूम कहते हैं, होगा। अब उसके पीछे वाले में कॉइल रहता है, रिंग रहता है, उस रिंग में स्टिक फंसा हुआ रहता है। तो जितना नंबर ऑफ स्टिक्स फंसा हुआ है उसको उसका स्टिक फ्लक्स कहेंगे।
उस गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इतना स्टिक पार कर रहा, दैट इज द स्टिक फ्लक्स ऑफ दैट गिवन एरिया। उसी तरह से किसी भी गिवन एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फर्स्ट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड द कॉइल along its axis gradually or rapidly, या तो धीरे धीरे लाए या रैपिडली लाए। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे पहले मान लें कि नॉर्थ पोल है, ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, निकल रहा मानते हैं, अगर रिंग इस जगह रखते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स कितना लिंक्ड है, 1 2 3 4 5। अगर इसी रिंग को यहां पर ला दें तो इस तरह से ला दें तो कितना लाइंस ऑफ फोर्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फील्ड लाइन से जुड़ गया, पहले 5 था फिर 11, यानी जब हम नजदीक लाएंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगा उससे जुड़ने वाला, तो जुड़ेगा तो हमको फ्लक्स चेंज हुआ। इसका मतलब अब जैसे फ्लक्स हुआ तो देखेंगे कि इसका नीडल जो है, फराडे दिखा कि इसका नीडल राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, यानी फ्लक्स बोला कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका गैल्वेनोमीटर का नीडल राइट की ओर डिफ्लेक्ट हुआ। और रैपिडली इसका द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज इंक्रीज्ड, number of magnetic field lines is increased, so the needle is deflect towards right, needle deflect towards right की तरफ needle deflect हो जाता है। दूसरा पॉइंट है when it is taken away, अगर हम इसको दूर ले जाएंगे, एक और डायग्राम बनाइए, दूर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, when it is taken away from the coil, the number of magnetic field lines will be decreased, so the needle will deflect towards लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। And when it is suddenly bring towards the coil and suddenly stop, brought towards the coil and then suddenly stopped कर गया, तो क्या होगा, when needle will deflect towards left, when it is brought towards the coil, coil and suddenly stopped. First needle will deflect towards right की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, and then returns back to zero, and then returns back to zero। तो इस तीन एक्सपेरिमेंट के आधार पर पहले ये डिफ्लेक्ट हुआ राइट की तरफ, इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ, फिर लौट आया। तो इस 3 एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया फैराडे, तीनों एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया कि whenever magnetic flux linked with the coil is changed, induced EMF, consequently induced current will develop, induced EMF then induced current will develop। इसको एक एग्जांपल समझा सकते हैं कि you have been given wooden frame and a copper frame, copper circular frame or wooden circular frame, and north pole is brought towards the coil।
in both coil, wooden frame coil and copper frame coil, in both coil EMF will develop, but current will develop only copper coil. There is no current develop in the wooden coil because it doesn't conduct electricity. तो हम कह सकते हैं कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो EMF डेवलप होगा, जब तक चेंज होगा तब तक EMF डेवलप होगा, देन करंट डेवलप होगा. EMF डेवलप होगा, उसके बाद करंट ना भी डेवलप हो सकता है. वो देखेगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, या मानते कहीं पर कट किया हुआ है, यहाँ पर ऐसा कट किया हुआ है कॉइल, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, सिर्फ EMF डेवलप होकर रह जाएगा. ये क्लोज लूप बनेगा तभी करंट डेवलप होगा. ये सब भी चीज है, इसलिए कंसिक्वेंटली करंट विल डेवलप, उसके बाद करंट डेवलप होता है, पहले EMF डेवलप होता है. यानी पहला पॉइंट था कि whenever magnetic flux attached with the coil is changed, induced EMF, consequently induced current will develop. दूसरा पॉइंट क्या था इसमें कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ EMF will exist till there is a change in magnetic flux. जब तक चेंज होते रहा तभी तक ये एग्जिस्ट किया, यानी EMF या करंट जो भी डेवलप हो रहा है वो तभी तक एग्जिस्ट किया, तभी तक पैदा हुआ, तभी तक डेवलप किया करंट में या लूप में, जब तक कि फ्लक्स चेंज हुआ. अगर इफ देयर इज नो चेंज देन इट विल रिटर्न बैक, इट विल बिकम जीरो, यानी देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ करंट और EMF इन द कॉइल. इसका ये मतलब नहीं कि फ्लक्स लिंक्ड नहीं है, फ्लक्स लिंक्ड है, फ्लक्स चेंज होगा तभी ऐसा होगा. तीसरा द इम्पोर्टेंट कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF. ये EMF जो डेवलप होगा उसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा. तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इसके आधार पर फराडे 3 ठो रूल बताए. दिस रूल इज कॉल्ड फराडे फ्लक्स रूल. यही फराडे फ्लक्स रूल इसी कहते हैं. दिस इज द एक्सपेरिमेंट. According to this experiment, Faraday gives 3 laws. First, whenever magnetic flux linked with the coil is changed, induced EMF, consequently induced current will develop. This current will exist ये करंट तब तक एग्जिस्ट करेगा till there is change in magnetic flux, जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ. तीसरा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux is directly proportional to induced EMF. Time rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF, and d phi by dt is directly proportional to EMF जो डेवलप हुआ is directly proportional to d phi by dt. This implies that EMF is equal to minus n d phi by dt, where n is the number of turns in the coil, and negative sign is not explained. नेगेटिव साइन क्यों हुआ ये नहीं बता पाया वो. तो ये 3 लॉ दिया कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ जुड़ता है, इट चेंज्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज, जो जुड़ा हुआ है उससे जब चेंज होता है तो इंड्यूस्ड EMF, उसके बाद इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है. दूसरा, द करंट विल एग्जिस्ट, ये करंट तभी तक एग्जिस्ट होता है टिल देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तब जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए.
and time rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF. यानी EMF is directly d phi by dt, EMF of minus n d phi by dt, n is the number of turns in the coil and negative sign is not explained by this Faraday. तो इसके आधार पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसके आधार पर ग्राफ से क्लियर पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। पहला था कि जब हम इसको फ्लक्स को ले जा रहे थे तो फ्लक्स और टाइम के बीच अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो देखते हैं कि इस तरह से ग्राफ आया, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था तो उसका ईएमएफ क्या होगा, निगेटिव हो गया। ईएमएफ अगर हम t सेकंड तक के लिए किए तो इसका निगेटिव हुआ, डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी हुआ। दूसरा, अगर दूसरे वाले में फ्लक्स इस तरह से चेंज डिक्रीज हुआ, दूर ले जा रहे थे, तो इसका फ्लक्स ईएमएफ के साथ टाइम का ग्राफ, ये है फ्लक्स का टाइम के साथ ग्राफ है, तो इसका ईएमएफ कांस्टेंट इस तरह से जाएगा, ऊपर में होगा। ये इससे पता चला कि फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा मतलब इसका स्लोप जो होगा, स्लोप यानी चेंज इन डेल फाई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस ईएमएफ होगा। द स्लोप ऑफ द ग्राफ determines the EMF, नेगेटिव EMF। ओके, एक और थर्ड एक्सपेरिमेंट में बोला कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, नहीं कीजिए, फ्लक्स लिंक्ड है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, यानी इस तरह का ग्राफ है तो इसका EMF, ये फ्लक्स और टाइम के बीच ग्राफ है, तो EMF और टाइम के बीच ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होगा, इसके ऊपर 0 होगा t सेकंड तक का, यानी फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो EMF डेवलप नहीं हुआ। ये तीन ग्राफ से क्लियर पता चल रहा होगा एक्सपेरिमेंट से कि जब इंक्रीज किया तो नेगेटिव EMF डेवलप हुआ, जब डिक्रीज किया तो पॉजिटिव EMF डेवलप हुआ, और जब कांस्टेंट रहा तो कोई EMF डेवलप नहीं हुआ। ये तीनों एक्सपेरिमेंट से पता चला। इसके आधार पर द डायरेक्शन ऑफ, इसमें कह सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डायरेक्शन ऑफ EMF इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। Fleming, the direction of EMF, या the direction of current or EMF is determined by Fleming left hand rule, sorry, right hand rule। राइट हैंड रूल। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक चीज फिर बता देते हैं कि LEFT, लेफ्ट में F आता है मतलब फोर्स, इससे पता चलेगा। RIGST, राइट में I आता है मतलब I का पता चलेगा। तो हम I पढ़ा रहे हैं, करंट बता रहे हैं कि करंट क्या होगा, इसलिए राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, व्हेन सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर and thumb are stretched mutually perpendicular to each other. Thumb of right hand are stretched mutually perpendicular to each other in such a way thumb represent the direction of force. Thumb represent the direction of force. Forefinger represent the direction of magnetic field. Then central finger will represent the direction of current। तो सेंट्रल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताएगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर एप्लीकेशन बढ़ेंगे इसमें, इसलिए नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में हम आपको फिर से बताएंगे। ओके, थैंक यू, और होप कि आप इसको पसंद करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
और आशा है कि पसंद आया होगा। और एप्लीकेशन बताएंगे फ्लक्स और निकालने के, अगर आपको कमेंट करना तो कीजिए कमेंट, और हम फ्लक्स निकालने का तरीका बताएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।